معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے نئی سٹوری کم سن بدرو۔ شمالی عراق کے ایک علاقے میں ماہرین آثار قدیمہ نے جب قدیم ادوار کے کھنڈرات کی نشاندہی کی تو اس علاقے کی کھدائی شروع ہو گئی۔ چند ہی دنوں کی کاوشوں کے بعد مکانات کے کھنڈرات کے نشانات ملنے شروع ہو گئے۔ ان کھنڈرات میں جو چیز سب سے نمایاں طور پر سامنے آئی وہ ایک معبد خانہ تھا، جس کا مینار ایک انسان نما گنبد جیسا تھا، جس کے ہاتھوں کی جگہ دو بڑے دیو ہیکل پر بنے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ ابھی تک کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی جو قدیم تہذیب کی نشاندہی کر سکے، اس لیے مزید کھدائی جاری تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا، مزدور ابھی تک کھدائی میں مصروف تھے۔ نہ صرف مزدور بلکہ ماہرین بھی ممکنہ جگہوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان ماہرین میں پروفیسر جیکب بھی تھا، جو اپنی جوانی کو پیچھے چھوڑ آیا تھا، لیکن اس پیرانہ سالی میں بھی پرجوش تھا۔ وہ ایک دیوار کا بے غور معائنہ کر رہا تھا کہ ایک بدو لڑکا تیزی سے دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ سر، ایک غار برآمد ہوا ہے، لڑکے نے پھولی ہوئی سانس کے درمیان عربی میں پروفیسر کو اطلاع دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد پروفیسر اس غار کا معائنہ کر رہا تھا۔ چونکہ غار کے قریب ابھی کھدائی مکمل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کوئی رائے قائم کرنا قبل از وقت تھا۔ غار کا دہانہ 2 فٹ سے زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ پروفیسر غار کے اندر ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا کہ یکا یک اس کی نظر ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر پڑی۔ اس نے فوراً ہی بیلچے کی مدد سے اسے کھینچ لیا اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس سے مٹی علیحدہ کی تو اندر سے ایک دھات کا سکہ برآمد ہوا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، مساجد سے مغرب کی اذان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، تاہم ابھی اتنی روشنی باقی تھی کہ اس سکے پر کندہ تصویر صاف طور پر نظر آ سکتی تھی۔ وہ تصویر معبد خانہ کے گنبد پر بنی ہوئی تصویر سے مشابہ تھی۔ پروفیسر کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر سکہ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اگلے روز اس نے کئی مقامی ماہرین سے رابطہ قائم کیا، لیکن اس تصویر کے بارے میں کوئی بھی حتمی رائے نہیں دے سکا۔ کیٹس اپنی بچیوں کے ہمراہ جارج ٹاور کے ایک خوبصورت علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ بڑی لڑکی کی عمر 12 سال سے تجاوز کر چکی تھی، جبکہ چھوٹی لڑکی شیرون 9ویں سال میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ شو بزنس سے منسلک ہونے کے باوجود بھی اپنی مصروفیات صرف اس حد تک رکھتی کہ بچیوں کی دیکھ بھال میں اثر انداز نہ ہو سکے۔ حالانکہ گھر میں ڈرائیور کے علاوہ ایک خادمہ بھی موجود تھی، جس نے گھر کی دیکھ بھال پر کبھی کوتاہی نہیں کی، اور نہ ہی کیٹس کو کبھی اس سے کوئی شکایت ہوئی۔ لیکن باوجود اس کے وہ گھر کے معاملات میں، خاص طور پر بچیوں کے معاملے میں، ہر چیز کا خود خیال رکھتی۔ شیرون کچھ شرارتی بھی تھی، ادھر کئی دنوں سے اس کا بدن بھی کچھ فربا ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے تاکید کی تھی کہ شوگر سے شیرون کو دور رکھا جائے، لیکن مشکل یہ تھا کہ شیرون کو میٹھی چیزیں از حد پسند تھی۔ وہ اسے حاصل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ کئی سال قبل کیٹس نے اپنے شوہر سے اختلافات کی بنا پر علیحدگی اختیار کر لی تھی، پھر مکمل طور پر قطع تعلق کر لیا، لیکن اس نے اپنی شفقت اور محبت سے بچیوں کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ شیرون تو باپ کو کسی حد تک بھول چکی تھی۔ ہاں، اس کی بڑی بچی کے دل میں باپ کے لیے کبھی ہوک ضرور اٹھتی تھی۔ اس نے کئی دفعہ اپنی ماں سے والد کے بارے میں ذکر بھی کیا، لیکن کیٹس بڑی خوبصورتی سے بات ٹال جاتی۔ وہ اپنے شوہر کی ہر یاد کو اپنے ذہن سے کھرچ کر پھینک چکی تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ بچے بھی اپنے باپ کو بھول جائیں۔ وہ ایک باہمت عورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی
زمانے کے بہاؤ میں وہ اور لوگوں کے ساتھ شانہ سے شانہ ملا کر چل رہی تھی۔ اسے اپنے آپ پر مکمل اعتماد تھا، اسی لیے اس نے شوہر سے علیحدگی کے بعد بھی کسی کا ہاتھ پکڑنا گوارا نہیں کیا، اور یہی اعتماد وہ اپنی بچیوں میں بھی پیدا کرنا چاہ رہی تھی۔ ایک رات جب کیٹس گہری نیند سو رہی تھی کہ ایک آواز سے اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ بیداری کی حالت میں بھی اسے وہ آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وقفے وقفے سے کوئی چیز اس کے مکان کے اوپری حصے پر گر رہی ہو۔ وہ خوف زدہ ہونے کی بجائے اس آواز کی بحرکات کا پتہ کرنے چل پڑی۔ اس نے اپنے بدن پر گون پہنا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ بڑی لڑکی پچھلے حصے میں ڈرائنگ روم سے منسلک کمرے میں سوئی تھی، جبکہ پہلی منزل پر اس کی چھوٹی لڑکی شیرون کا کمرہ تھا۔ خود اس کا کمرہ ذہنی حصے میں تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپری منزل پر پہنچ گئی۔ آہستہ شیرون کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سرد ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے سردی سے کانپتے ہوئے بجلی روشن کی اور کھڑکی کی طرف بڑھی، کیونکہ کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے، جہاں سے یخ بستہ ہوائیں کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ کیٹس کھڑکی بند کرنے کے بعد زیر لب شیرون کو برا بلا کہنے لگی، کیونکہ اس کی بے پرواہی کی وجہ سے نہ صرف کھڑکی کھلی رہ گئی بلکہ سرد ہواؤں کے باوجود وہ بغیر کمبل کے اپنے بستر پر سمٹی پڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کا کمبل ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ کیٹس نے کمبل اٹھا کر شیرون پر اچھی طرح ڈال دیا، پھر کچھ دیر کھڑی شیرون کی طرف دیکھتی رہی اور واپسی کے لیے مڑی۔ وہ آواز جس نے اسے بیدار ہونے پر مجبور کر دیا تھا اب بند ہو چکی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر نکل آئی اور آہستگی سے شیرون کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ لیکن دوسری رات پھر اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس بیداری کی وجہ بھی انجانی آواز ہی تھی، لیکن آج اس پر کچھ جلاہٹ سوار ہونے لگی۔ اسے شیرون پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ غالباً آج بھی اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے کھڑکی کھلی رہ گئی ہوگی۔ اس جلاہٹ کی عالم میں جب وہ شیرون کے کمرے میں پہنچی تو کھڑکی کھلی نظر آئی۔ گزشتہ روز کی طرح آج بھی سرد ہوائیں کمرے میں گشت کر رہی تھی، جبکہ شیرون بغیر کمبل کے اپنے بستر پر محو خواب تھی۔ کیٹس شیرون کے کمرے کی کھڑکی بند کرنے اور اسے کمبل اڑانے کے بعد جب اس کمرے سے باہر آئی تو اسے وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ پھر متواتر اس کی آواز گونجتی بڑھتی گئی، لیکن اس آواز کا مخزن سٹور تھا۔ کیٹس نے کچھ اور دیر تو غور کیا۔ آخر کار اس آواز کی وجوہات جاننے کے لیے اس نے سٹک سے دو چھتی کا ڈھکن نما دروازہ اٹھا دیا۔ دروازہ کھلنے کے بعد سٹک ہی کی مدد سے اس نے فولڈنگ سیڑھی بھی کھینچ لی۔ اب وہ سٹور میں داخل ہونے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی، لیکن سیڑھی پر چڑھنے سے پہلے اس نے بلب روشن کرنے کے لیے جب بٹن دبایا تو بلب نے جلنے سے انکار کر دیا۔ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی چیز وقفے وقفے سے گر رہی ہو، یا کبھی یوں محسوس ہوتا کہ گھسٹ رہی ہو، لیکن یہ آوازیں کیٹس کو خوف زدہ کرنے میں ناکام رہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد کیٹس موم بتی لیے اسٹور میں ان آوازوں کا سراغ ڈھونڈ رہی تھی۔ آوازیں اب بھی آ رہی تھی، لیکن اب درمیانی وقفہ کچھ بڑھ گیا تھا۔ کیٹس چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھتی رہی، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہی کہ یہ آوازیں کیوں اور کہاں سے آ رہی ہیں، کیونکہ موم بتی کی روشنی پورے اسٹور کا اندھیرا دور کرنے میں ناکام رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد آوازیں معدوم ہو گئیں۔ کیٹس کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے واپس آ گئی۔ اس نے سوچا کہ دن کی روشنی میں اسٹور کا جائزہ لے گی اور بلب بھی تبدیل کرا دے گی، لیکن دوسرے دن مصروفیت کے باعث یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی، کیونکہ رات کے کھانے پر چند دوستوں کو بلا رکھا تھا، اس لیے گھر پہنچتے ہی خادمہ کو ہدایات دینے اور دوسری ضروریات میں مشغول ہو گئی۔ شام کو مہمانوں کی آمد سے پہلے کیٹس نے شیرون کو ہدایت کر دی کہ وہ خود باورچی خانے میں کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلی آئے۔ شیرون کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ڈرائنگ روم کے دروازے کی آڑ لے کر مہمانوں کی خوش گپیوں میں مصروف دیکھتی رہی۔ اس کی شدید خواہش تھی
کہ وہ بھی मेहमानों के साथ उस तफरीह से लुत्फ़ अंदोज़ हो, लेकिन साथ ही साथ उसे माँ की हदायत भी याद थी। इसलिए वो खामोशी से मुड़ी, अपने कमरे में जाकर शब ख्वाबी का लिबास तब्दील किया और बिस्तर पर दराज हो गई। खाने पीने से फारग होकर मेहमान और मेज़बान कुछ देर तो कुछ गपियाँ करते रहे। फिर सारे मेहमान मिलकर पियानो पर एक मज़ाहिया गीत गाने लगे। यकायक सभी लोगों की आवाज़ें थम गईं। उसके साथ ही सब की नज़रें ऊपर उठी, जहां शेरून अपने शब ख्वाबी के लिबास में खड़ी खामोशी से उन लोगों को देख रही थी। उस वक़्त उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। वो साकत अपनी जगह पर खड़ी थी। कुछ देर खामोशी से देखने के बाद उसने माँ को मुखातब किया। मैं यहाँ आ गई हूँ। शेरून का लहजा नहायत ही संजीदा था, साथ ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो नींद में बोल रही हो। अपने जुमले के अख्ताम पर उसने वही खड़े खड़े पेशाब करना शुरू कर दिया। केट्स के साथ सभी लोग हैरत से शेरून को देख रहे थे। वो सब हैरान थे कि शेरून से ये हरकत किस तरह सरज़िद हो रही है। वो अपनी उम्र की उस हद को पीछे छोड़ आई थी जहां इस बात की तमीज़ ना हो। सबसे ज़्यादा हैरानी केट्स को थी। मेहमानों के सामने वो खजालत भी महसूस कर रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू रखा। फिर वो मेहमानों के पास से उठी और शेरून के करीब पहुंचकर उसे मुखातब किया। मेरे साथ आओ शेरून। उसकी आवाज़ लर्ज़ रही थी। केट्स शेरून को लेकर उसके कमरे में चली आई। शेरून के कमरे से मलहका गुसल खाने में शेरून को गुसल कराया, फिर उसके कपड़े तब्दील किए और बिस्तर पर लेटाकर एहतियात से लिहाफ उड़ाने के बाद वापसी के लिए मुड़ी। माँ, मुझे क्या हुआ है? शेरून की आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, जैसे वो बरसों से बीमार चली आ रही हो। घबराओ मत हनी, केट्स ने दोबारा उसकी तरफ मुड़ते हुए जवाब दिया। मामूली बीमारी है, जैसा कि डॉक्टर ने कहा है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। दूसरी सुबह जब केट्स बेदार हुई तो खादमा उस कालीन की धुलाई कर रही थी। रात उसका जहन पर काफ़ी बोझ रहा था, इसलिए नींद भी पूरी तरह नहीं आ सकी थी। उसने खादमा से शेरून के मुतल्लिक़ दरियाफ़त किया, लेकिन उसके जवाब से पहले ही शेरून की दिल हिला देने वाली चीख सुनाई दी और फिर चीखों में मुतवातर इजाफा होता चला गया। कैट सीढ़ियाँ फड़ांगती हुई शेरून के कमरे की तरफ लपकी। जब वो उसके कमरे में दाखिल हुई तो अवसान खता हो गए। जो कुछ भी उसने देखा वो उसे खौफजदा करने के लिए काफ़ी था। शेरून अपने बिस्तर पर बुरी तरह उछल रही थी, बल्कि उसका बेड भी बुरी तरह हिल रहा था। शेरून के खौफजदा होने की वजह भी यही थी। केट्स ने बिस्तर पर छलांग लगाई और शेरून को अपने सीने से चिमटा लिया। कुछ देर के बाद अपनी जगह पर साकत हो गया, लेकिन कैट्स कुछ ज़्यादा ही मुतफक्कर हो गई। दूसरे दिन कैट्स ड्राइंग रूम में फ़िक्रमंद बैठी हुई थी कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी फूल सी बच्ची को कौन सी बीमारी लाहक हो गई है। डॉक्टर शेरून के कमरे में उसका मुआयना कर रहा था। अभी वो सोचों में गर्क थी कि डॉक्टर शेरून का मुआयना करने के बाद वापस ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। डॉक्टर को देखते ही केट्स बेचैनी से खड़ी हो गई। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शेरून का दिमागी सिस्टम में कुछ फ़र्क आ गया है, लेकिन अभी मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता जब तक कि उसके मुख्तलिफ टेस्ट ना ले लिए जाएं। लेकिन ये सारी अलामात खुलियों में फ़र्क आ जाने के बायस है। डॉक्टर ने पुरसकून लहजा में केट्स को मुखातब करते हुए जवाब दिया। डॉक्टर, आप हतमी राय क्यों नहीं देते? केट्स ने डॉक्टर के चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल किया। मैं अपनी हतमी राय मुख्तलिफ टेस्ट लेने के बाद ही दे सकूँगा। अगर आप इजाज़त दें तो शेरून को हस्पताल ले जाया जाए। मेरी तरफ से इजाज़त है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए, केट्स ने जल्दी से जवाब दिया। केट्स ने शेरून को अस्पताल पहुँचाने पर देर नहीं की। वहाँ उसके दिमाग की हर जाविये से एक्सरे लिए गए, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट से भी गुजारा गया और उसके बाद माहरीन ने मुतफ़क्का तौर पर फैसला दे दिया कि शेरून के दिमागी खुलिये अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और वो दिमागी तौर पर सेहतमंद है। शेरून को अस्पताल से रुखसत कर दिया गया, लेकिन उसकी सारी रिपोर्ट्स रोक ली गईं ताकि मज़ीद तज्ज़िया किया जा सके। शायद कोई ऐसी बात समझ में आ जाए जो अब तक नज़रों से पोशीदा रही हो।
यही वजह थी कि मेज़ पर और एक्सरे स्क्रीन पर शरून के तमाम एक्सरे और रिपोर्ट्स मौजूद थीं और मेज़ के गिर्द माहिरीन खड़े अपनी राय का इजहार कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी उसके मर्ज को नहीं समझ सका था। उसी वक्त फ़ोन पर उन्हें इत्तला मिली कि शरून को दोबारा दौरा पड़ा है। डॉक्टर जिस वक्त कमरे में दाखिल हुए, शरून के मुंह से खौफजदा चीखें निकल रही थी और वह मशीनी अंदाज में बिस्तर पर उछल रही थी। शरून के इस मशीनी अमल को देखकर डॉक्टर के पांव दरवाजे पर जम से गए। शरून की दिलदोज़ चीखों से कमरा गूंज रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो सख्त अजियत से दो चार है। यकायक शरून की आवाज़ों में तब्दीली शुरू हो गई। अब उसके मुंह से मर्दाना और करख्त आवाज़ निकलनी शुरू हो गई और उसकी आंखों की पुतलियां चढ़ गईं। फिर यकायक वो बिस्तर पर घुटने टेक कर खड़ी हो गई। उसने गुर्राते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। वो डॉक्टर से मुखातब थी। उसकी गुर्राती हुई आवाज़ में मर्दाना और जनाना दोनों आवाज़ों का इम्तजाज था। डॉक्टरों ने इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए शरून को दोनों बाजुओं से पकड़ लिया और उसके साथ ही शरून के मुंह से दोबारा चीखें निकलना शुरू हो गईं, लेकिन ये चीखें भी मिली जुली आवाज़ों में थी। एक डॉक्टर ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसके बाजू में इंजेक्शन दे दिया। गालिबन डॉक्टर ने बेहोशी की दवा शरून के जिस्म में दाखिल कर दी थी, क्योंकि वह फ़ौरन ही माहौल से बेगाना हो गई। केट्स रिपोर्टिंग रूम में बेचैनी से टहल रही थी। शरून की चीखें यहाँ भी वाज़े तौर पर सुनाई दे रही थी। उन चीखों के साथ उसका कलेजा फट रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू रखा हुआ था। डॉक्टर को सीढ़ियों से उतरते देखकर वो बेइख्तियार आगे बढ़ी। उस वक़्त शरून की आवाज़ें आना बंद हो चुकी थी। अब वो कैसी है? केट्स ने कांपते होंठों से सवाल किया। सो रही है, डॉक्टर ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया। डॉक्टर, उसे हुआ क्या है? केट्स के लहजे में तशवीश थी। हम अब भी वसूख से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप अब भी वसूख से कुछ नहीं कह सकते। केट्स की आवाज़ गुस्से से कदरे बुलंद हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं या मेरे साथी अभी तक किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर का लहजा अब भी पुरसकून था। आप क्या खाक कोशिश कर रहे हैं? आप अपनी नाअहली का साफ तौर पर एतराफ़ क्यों नहीं कर लेते? केट्स ने चीखते हुए कहा। मोहतरमा, अगर बात सिर्फ मेरी नाअहलियत की होती तो शायद मैं उसे तस्लीम भी कर लेता, लेकिन आप उन बेशकीमत और तरक्की याफ्ता मशीनों को क्या कहेंगी जिनकी मदद से शरून के टेस्ट लिए गए हैं? हालांकि आज तक कोई ऐसी मिसाल नहीं कि उन मशीनों की रिपोर्ट्स गलत साबित हुई हों। डॉक्टर का लहजा अब भी नरम था। केट्स जवाब में खामोश रही। वो बजाते खुद बुरी तरह उलझ गई थी और उसकी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि शरून किसी तरह भी ठीक हो जाए। क्या वह ठीक हो जाएगी? केट्स ने पुरउम्मीद नज़रों से देखते हुए सवाल किया। उम्मीद तो है, बल्कि इसके बारे में हतमी तौर पर वो साइकाल्टिस्ट ही बता सकेगा जो इस वक्त शरून के कमरे में मौजूद है। डॉक्टर ने सोफे पर बैठते हुए जवाब दिया। बराह करम आप ये बताइए कि शरून कोई नशा आवर दवा इस्तेमाल करती है? नहीं, कभी नहीं। मुझे अफसोस है कि शायद मेरी इस इत्तला से आपको तकलीफ़ भी पहुँचे कि शरून को बिस्तर के साथ एहतियातन बांध दिया गया है। वैसे क्या आपके शोहर को इसकी हालत का इल्म है? मैं नहीं। केट्स ने नफ़ी में सर को हिलाते हुए जवाब दिया। फादर कराउन वर्जिश से फारग हुआ ही था कि उसी वक्त मैदान में उसका पड़ोसी भी पहुंच गया। फादर ने उसे देखते ही सलाम किया, लेकिन उसने सलाम का जवाब देने के बजाय उसे इतला दी, तुम्हारी वालदा की तबीयत तुम्हारे आने के बाद यकायक बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने उन्हें फ़ौरन ही अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। बेहतर यही है कि तुम सीधे अस्पताल पहुंचो। फादर ने अस्पताल पहुंचने में कोताही का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन उसकी वालदा उससे पहले ही उस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। फादर ने बहुत कोशिश की कि वो अपने जज्बात पर काबू पा सके, लेकिन नाकाम रहा। आखिर वो अपनी वालदा से लिपट कर रोने लगा। उस वक़्त उसकी वालदा की मुट्ठी में बंद एक लाकड़ फिसल कर गिर पड़ा, जिसे फादर ने फर्श से उठा लिया। ये लाकड़ उसकी वालदा हमेशा इबादत के वक़्त पहना करती थी।
जिसे उसके रूहानी बाप ने तोहफतन दिया था। उस लॉकेट को फादर ने माँ की निशानी समझकर अपने गले में पहन लिया। दूसरी जानब केट्स जिस वक्त शैरोन के कमरे में दाखिल हुई तो वो अपने बिस्तर के एक कोने पर इत्मीनान से बैठी हुई थी, जब साइकाट्रिस्ट बिस्तर पर सर रखे गालबन सो रहा था। शैरोन के हाथ में एक करास था, जबकि उसके चेहरे पर खराशों के निशानात नुमायां तौर पर नजर आ रहे थे। केट्स हैरानी से उसे देख रही थी। यकायक उसे एहसास हुआ कि शैरोन ने उस करास से अपने चेहरे पर जख्म लगा लिए हैं। वो तेजी से लपकी और शैरोन से वो करास छीनने लगी, लेकिन शैरोन उससे ताकतवर मालूम हो रही थी, वरना सिर्फ मज़ाहमत कर रही थी बल्कि मर्दाना आवाज़ में उसे मना कर रही थी। शैरोन ने जब देखा कि केट्स नहीं मान रही तो उसने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। केट्स बुखला गई। वो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोच सकती थी कि शैरोन कभी उसके साथ इस किस्म की गुस्ताखी भी कर सकती है। उसे इस बात पर भी हैरत हो रही थी कि इस कदर शोर शराबे के बावजूद भी साइकाट्रिस्ट सो रहा है। यकायक उसके जहन में एक ख्याल तेजी से आया और वो काम कर रह गई। डॉक्टर, केट्स ने पूरी ताकत से आवाज़ दी। उसी वक्त सीढ़ियों पर डॉक्टर के कदमों की आवाज़ उभरने लगी। इससे पहले कि डॉक्टर कमरे में दाखिल हों, किसी नादीदा हाथ ने दरवाज़ा एक झटके के साथ बंद कर दिया। ना सिर्फ दरवाज़ा बंद कर दिया बल्कि भारी भरकम कुर्सी भी तेज़ी से घिसटती हुई आई और दरवाजे के साथ चिपक गई। ये सूरत हाल देखकर केट्स के औसान खता हो गए और वो एक कोने में सिमट गई, जबकि शैरोन उसे देखते हुए मर्दाना आवाज़ में कहके लगाती रही। फादर क्राउन हस्बे आदत सुबह सवेरे मैदान में दौड़ लगा रहा था। दौड़ से फारग होकर जब वो अपने कपड़ों के पास पहुंचा तो वहां एक शख्स और भी मौजूद था। फादर उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर तौलिया उठाकर पसीना खुश्क करने लगा। उस वक़्त वो शख्स भी उसके पास पहुंच गया। गुड मॉर्निंग फादर, नवार्द ने सलाम करने में पहल की। गुड मॉर्निंग। फादर ने एक नज़र अजनबी पर नज़र डालते हुए जवाब दिया। मुझे लेफ्टिनेंट कैंडर कहते हैं फादर। अजनबी ने फादर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए तारुफ कराया। बहुत खुशी हुई लेफ्टिनेंट, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? फादर ने रुके बगैर दरियाफ़त किया। मुझे आपकी वालदा की मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ। खुदा ने अपनी अमानत वापस ले ली लेफ्टिनेंट, हम उसकी खुदाई में दखल नहीं दे सकते। अब वो दोनों सड़क पर आ गए थे। फादर, मुझे आपसे एक मशवरा लेना है। मुझे आपके काम आकर खुशी होगी लेफ्टिनेंट, फादर ने बदस्तूर चलते हुए जवाब दिया। एक साइकाट्रिस्ट का कत्ल हो गया है। एक 12 साल बच्ची ने उसकी गर्दन तोड़ दी है। इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ? ये आपका मामला है, फादर ने बदस्तूर चलते हुए जवाब दिया। मसला ये है कि बच्ची का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं और उससे कुछ ऐसी हरकतें सरजद हो रही हैं जो एक आम इंसान के बस से बाहर हैं, जबकि डॉक्टर उसे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद करार दे रहे हैं। अफीसर, मैं अब तक नहीं समझ सका कि मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, फादर मैरून ने रुकते हुए जवाब दिया। फादर, आसेब के मतलब आपका क्या ख्याल है? मैं उसकी मौजूदगी से मुनकर नहीं हूँ। फिर लेफ्टिनेंट कैंडर ने शैरोन की पूरी कैफियत बयान करनी शुरू कर दी। अफीसर, मैं उस लड़की को एक नज़र देखना चाहता हूँ, उसके बाद ही कोई राय दे सकता हूँ, फादर ने पूरी बात सुनने के बाद जवाब दिया। फादर जिस वक्त शैरोन के कमरे में दाखिल हुआ, शैरोन बदस्तूर बिस्तर से बंधी हुई थी। उसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। फादर ने केट्स को कमरे के बाहर ही रोक दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर शैरोन के बिस्तर के एक तरफ खड़े होकर उसे मुखातब किया। तुम अपने आप को बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ, शैरोन ने कमज़ोर आवाज़ में मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या तुम्हारे अलावा भी कोई तुम्हारे साथ होता है? फादर ने बराह रास्त शैरोन की आंखों में देखते हुए सवाल किया। किस वक्त? शैरोन की आवाज़ नकाहत में डूबी हुई थी। तुम उसके बारे में क्या जानती हो? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं अगर उससे कुछ पूछूं तो वह जवाब देगा। नहीं, शैरोन की आवाज़ इस दफ़ा नकाहत से पाक थी। क्यों नहीं? मैं बोल रही हूँ। अगर वो बात करे तो शायद कोई रास्ता निकल आए। अगर मैं उससे बात करूं तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? नहीं, मैं उस शख्स से मुखातब हूं जो शैरोन के अंदर मौजूद है।
मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सवालों का जवाब देगा। शरून का मुंह बंद था और उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकली। बात करो, मुझे जवाब दो। फादर का लहजा कुछ सख्त हो गया। शरून के मुंह से हल्की हल्की गुर्राहट खारिज होने लगी। क्या तुम वही हो जो शरून के अंदर मौजूद हो? कौन हो तुम? फादर ने इत्मीनान से दरियाफ्त किया। शरून के बिस्तर के पास डॉक्टर कुर्सी पर बैठा हुआ शरून की कैफियत का बगौर मुताला कर रहा था, जबकि शरून के चेहरे की कैफियत लम्हा बेलम्हा तब्दील होती जा रही थी। उसके हाथों के गिर्द बंधी हुई रस्सी आप ही आप खुल चुकी थी। यकायक शरून ने अपना एक हाथ झटके से डॉक्टर के हाथ पर रखा। डॉक्टर को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके हाथ पर कोई भारी हथौड़ा मार दिया हो। वो कटे हुए बैल की तरह ज़मीन पर गिरकर चीखने लगा और उसकी दिल हिला देने वाली चीखों से कमरा गूंजने लगा, जबकि शरून डॉक्टर को इस तरह देख रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरे दिन जब फादर वर्जिश कर रहा था तो लेफ्टिनेंट कैंडर वहां पहुंच गया। उस वक़्त फादर पसीने में शराबूर था। उसका गठा हुआ जिस्म नुमायां तौर पर नज़र आ रहा था। फादर, तुम्हारा शरून के मुतल्लिक़ क्या ख्याल है? कैंडर ने पूछा। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ वो किसी असेब के ज़ेर असर है। फादर ने तौलिए से पसीना खुश करते हुए जवाब दिया। क्या उसकी कुछ तफसील बताना पसंद करोगे? ऑफिसर, मैं अभी उसके बारे में कुछ तफसील नहीं बता सकता क्योंकि मेरे सामने अभी सब कुछ वाज़ेह नहीं है। फादर, चूँकि शरून एक कत्ल में मुलव्वस हो चुकी है और मैं उसको खुफिया तौर पर तहकीकात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप कानून के साथ पूरा तावन करेंगे। मुतमिन रहो ऑफिसर, मुझसे जो कुछ भी तावन हो सका वो मैं ज़रूर करूँगा। अगले रोज़ फादर अपने तौर पर तैयार होकर शरून के यहाँ पहुँच गया। शरून बदस्तूर बिस्तर से बंधी हुई थी। फादर के साथ केट्स भी कमरे में चली आई और उसे अपने बच्ची की हालत देखकर सख्त रंज हो रहा था। फूल सी शरून मुरझाकर जर्द हो चुकी थी। बाल बिखरे हुए थे, आंखों की पुतलियां चढ़ी हुई थी। नाक से बहने वाला पानी मजीद कराहत पैदा कर रहा था। फादर ने बढ़कर शरून की बाईं मुट्ठी खोली और उसमें क्रास दबा हुआ था। फादर कुछ देर तो उस क्रास को बगौर देखता रहा, फिर मुड़कर केट से दरियाफ्त किया, ये क्रास कहाँ से आया? मुझे नहीं मालूम, केट्स ने सिसकते हुए जवाब दिया। फादर ने केट्स को कमरे से निकल जाने का इशारा किया, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने अपने थैले से एक शीशी निकाली जिसके अंदर मुकद्दस पानी था। फादर ने उसका ढक्कन खोलकर पहले तो क्रास की शक्ल में पानी अपने बदन पर छिड़का और फिर उसी तरह शरून के बदन पर भी पानी का छिड़काव किया। उस पानी के पड़ते ही शरून के मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गईं। ऐसे महसूस हो रहा था कि गोया कई आदमी करब की हालत में चीख रहे हों। फादर ने तेजी से बढ़कर अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया और फिर उसका माइक शरून की तरफ करते हुए सवाल किया, कौन हो तुम? कोई नहीं, करब में डूबी हुई शरून ने ईंटते हुए जवाब दिया। बताओ, कौन हो तुम? फादर ने दोबारा सवाल किया। मैं कोई नहीं हूँ, कोई नहीं। इस दफ़ा आवाज़ रुक रुक कर और करब में डूबी हुई निकल रही थी। साथ ही ऐसे महसूस हो रहा था कि जवाब देने वाले के अलावा भी कुछ लोग करब से चीख रहे हों। फादर ने कई दफ़ा सवालात किए लेकिन मज़ीद किसी किस्म की मालूमात हासिल करने में नाकाम रहा। उसने टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया और घर आने के बाद उसने कई दफ़ा टेप रिकॉर्डर को चलाकर उन आवाज़ों को समझने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। चूँकि आवाज़ें मिली जुली थी इसलिए दुश्वारी पेश आ रही थी। सिर्फ इतना ही समझ में आ सका कि यह जो कोई भी है अंग्रेज़ी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा फादर कोई और राय कायम नहीं कर सका। चूँकि उसको इस किस्म के वाक़यात का ज़्यादा तजर्बा नहीं था इसलिए उसने बड़े पादरी से मशवरा लेने का फ़ैसला किया। पादरी को पूरी तफसील बताने के बाद उसने मदद की दरख्वास्त की। बड़े पादरी ने पूरी बात तवज्जो से सुनने के बाद उसे यकीन दिलाया कि इस सिलसिले में हर मुमकिन अमदाद की जाएगी। फादर क्रास को मशवरा दिया जाएगा कि वो तुम्हारे साथ मुकम्मल तावन करें। वो एक जहां दीदा शख्स है और इस किस्म के वाक़यात से निमटने का उन्हें खातर ख्वाह तजर्बा है। दूसरे दिन फादर क्रास के हमरा अपने ज़रूरी सामान के साथ केट्स के घर पहुंच गया।
केर्स ने खुश दिली से दोनों को खुश आमदीद कहा। कुछ ही देर के बाद दोनों फादर शैरून के कमरे में पहुंच गए। फादर क्रास ने अपने बटुए से क्रास निकालकर ताज़ीम दी और एक तरफ अदब से रख दिया और फिर दूसरे थैले से एक छोटी सी शीशी निकालकर उसका पानी पहले अपने ऊपर छिड़का, फिर फादर क्राउन पर छिड़कने लगे। तुम्हारी माँ तवाइफ थी, शैरून ने फादर क्राउन को मुखातब करते हुए कहा। उस वक़्त उसकी आवाज़ किसी उधेड़ उम्र मर्द से मुशाबा थी, चेहरा भी करी हो रहा था। तुमने उसे देखा है, फादर क्रास ने गुस्से से चीखते हुए जवाब दिया। उसके साथ ही चंद कतरे पानी के शैरून पर भी छिड़क दिए। शैरून के मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गईं। उन चीखों के बाद वो ज़ारो कतार रोने लगी, लेकिन आवाज़ अब भी शैरून की नहीं थी। पादरियों ने उसके चीखने चिल्लाने की परवाह नहीं की। फादर क्रास बाइबल लेकर शैरून के दाएं तरफ बैठ गए, जबकि फादर क्राउन शैरून के पाँव की तरफ बैठ गए और अब वक्फे वक्फे से दोनों यक्के बाद देगरे बाइबल पढ़ने लगे, जबकि शैरून के मुंह से चीखें बुलंद हो रही थीं।